Good morning students, I am your chemistry teacher Swati and today we are going to discuss the topic electrolysis in the chapter electrochemistry. So the topic is electrolysis. What do you mean by electrolysis now? It is the process of decomposition of an electrolyte when electric current is passed through either its aqueous solution or the molten state. So electrolysis में क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू एक्वस सॉल्यूशन और द मोल्टन स्टेट तो इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होगा या इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाएगा. सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम सेल. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस रहती है और इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही चीज़ें आपकी सेम सेल में रहेंगी. हेयर द एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. सो इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल योर एनोड इज positively charged and your cathode is negatively charged. Here signs are reversed. In the electrochemical cell the anode was negatively charged and the cathode was positively charged. Now here in the electrolytic cell the signs of anode cathodes are reversed. So during electrolysis of molten electrolyte cations are liberated at cathode whilst anions at the anode. तो जब आप मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पे बेसिकली आपके केटायंस लिबरेट होते हैं और एनोड पे एनायंस. So when two or more ions compete at the electrode, the ions with higher reduction potential gets liberated at the cathode, while ion with the lower reduction potential at the anode. जब दो ions आपकी compete करेंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ तो कौन सा आयन बेसिकली कैथोड की तरफ जाएगा? वो आयन जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा. हायर रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी सबसे ज़्यादा, वो रिड्यूस होना चाहेगा तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो एनोड की तरफ जाएगा. नाउ वी विल स्टडी द फैराडेज लॉ हियर व्हिच इज इन आवर सिलेबस. That is first law of the Faraday. First law of Faraday is what? It is saying that amount of substance deposited or liberated at cathode is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte. कि कितना भी सब्सटेंस या अमाउंट जो आपका कैथोड पर लिबरेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो बेसिकली जितना आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोलाइट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मीन्स जितना करंट होगा उतना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा. सो W इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू I मल्टीप्लाई T. दिस W इज़ द वेट of basically weight of amount of the substance which is depositing on the cathode directly proportional to current which is I into T. फाइन. और देन हमने प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए यहाँ पे Z लगाया. Z इज प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए आया विच इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड करंट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल्स टू चार्ज विच इज़ Q इंटू Z. सो W और वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू Z which is electrochemical equivalent. Fine. So I is the current in ampere, T is the time in second, Q is the quantity of charge which is coulomb. And when 1 ampere is when current is 1 ampere, time is 1 second and Q is 1, then W will becomes equals to Z. So electrochemical equivalent is the amount of substance deposited or liberated by passing 1 ampere current for 1 second. So electrochemical equivalent क्या है बेटा? जब आप 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करेंगे तो जो भी सब्सटेंस वहाँ डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर तो वो आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. सो योर बेसिकली W इज इक्वल्स टू Z. Fine. So now the second law is saying that when the same quantity of electricity is passed to different electrolytes, जब आप different electrolytes ले रहे हैं अपने experiment में, you are taking the different electrolytes and you are passing out the same quantity of electricity. In that case, the amount of substance which will deposit or liberate at the cathodes, at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights. Thus, the formula will be this. कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की सेम क्वांटिटी पास करा रहे हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा आपका लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो उसके उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा. मींस A का मास जो भी होगा जो डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा और B का जो भी मास डिपॉजिट होगा वो B के ही इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा. कब? जब आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स. तो जो भी मास आपका डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा. फाइन. सो हियर इज द फॉर्मूला दैट मास ऑफ A डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A एंड मास ऑफ B जो भी डिपॉजिट होगा दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ B. So here mass of A is what? W1 by W2 that is equals to equivalent weight of A and equivalent weight of B which is E1 by E2 जिसको हमने लिखा Z1Q is equals to Z2Q. So here E1 by E2 और equivalent of A divided by equivalent of B is equals to what? Z1Q upon Z2Q. ये फॉर्मूला हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है.
So here in this video we studied about the electrolysis. So in the electrolysis we discussed about the two law of Faraday. One is the first and second is basically the second law of electrolysis. In the very first law it is basically it tells that कि जितना आपका करंट होगा, जितना करंट पास कराएंगे आप थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा एट द कैथोड. सो हेयर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट और योर चार्ज. फाइन. एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए we have write the value, we use the value of Z, which is electrochemical equivalent. So electrochemical equivalent is nothing, it is the rate only when the passing current will be 1 ampere for 1 second. And second law say that कि जितना भी आपका इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली डिपॉजिट होगा आपके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, उसका मास जो भी आपका बेसिकली मेटल डिपॉजिट हो रहा है या जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट अपने ही केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बेसिकली इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल रहेगा. व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट्स. उनके ही इक्विवेलेंट वेट्स के प्रोपोर्शन होगा. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला here which I have used.